السلام علیکم سر. تو وداؤٹ فردر اڈو سر بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. سر یہ ہماری جو یہ سلسلہ ہے یہ 5واں آن لائن ڈائلاگ ہے شعیب سلطان صاحب کا کمیونٹی کے ساتھ. اس سے پہلے 4 ڈائلاگ ہو چکے ہیں اور ہم سب بڑے شکر گزار ہیں شعیب صاحب کے کہ وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہماری ایک قسم کی یہ ایک ٹریننگ بھی ہے اور ایک قسم کی لرننگ بھی ہے. تو بہت شکریہ سر. میں صرف یہ کروں گا کہ اس دفعہ ہم ساؤتھ پنجاب سندھ اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے اب ہم میاں والی آئے ہیں. تو ادھر جو یہ سرگودا ریجن کے اندر آتا ہے سر میاں والی, تو غلام رسول جو ہیں آر جی ایم میں یہ دنیور کے ہی ہیں اور ریجنل پروگرام مینیجر ہے مدثر خان اور ڈی پی او ہے عبد الباقی صاحب. تو ہماری جو ایل ایس او ہے یہ اس کا نام ہے مہر ویلفیئر آرگنائزیشن. تو اوور ٹو یو غلام رسول. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ سر جو مطلب ہمیں یہ موقع دینے کا کہ یہ ڈائلاگ کا جو مطلب سلسلہ شروع ہوا. ہم ویسا بھی جو مطلب آف دا روڈ تھے تو آپ سے جو مطلب زیادہ جو مطلب ملاقات جو مطلب اس حساب سے نہیں ہو سکی, نہ آپ کی بھی جو مطلب اتنی زیادہ وزٹ نہیں. تو شکریہ جو مطلب وہ زوم کا کہ بھئی اس نے جو مطلب یہ دوری اور یہ فاصلہ جو مطلب ختم کر دے. اور ہم انتہائی جو مطلب پریولیج فیل کر رہے ہیں کہ بھئی آج ہم آپ کے ساتھ جو مطلب آن لائن ہے. اور ہمارے غلام رسول تو پوری شاعری کر رہا ہے راشد. دوسرا سر جو مطلب ہمارے کمیونٹی والوں کی بھی جو مطلب بہت زیادہ جو مطلب ڈیمانڈ اکثر بیشتر جو مطلب وہ کرتے تھے کہ بھئی شعیب صاحب کے ساتھ جو مطلب ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ خوش قسمتی سے آج یہ پہلا ایل ایس او کے ساتھ جو مطلب آپ کی ڈائلاگ ہوگی. امید ہے آئندہ اور ایل ایس او کے ساتھ بھی جو مطلب چلتے رہے گے. تو سر جو مطلب بہت مہربانی, شکریہ. غلام رسول ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار, شعیب صاحب کی بات سن لو. جی سر. میں کہہ رہا ہوں کہ راشد صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا, کیونکہ میرے لیے بھی یہ تو یعنی اس کووڈ کے زمانے میں جبکہ گھر سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں, اب یہ تو ایک اٹس اے ریئل ٹریٹ فار می کہ جناب یہاں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ بھاولپور ہو, چاہے وہ تربت ہو, چاہے وہ میاں والی ہو, تو روز سے بات کر سکتا ہوں. تو آئی ایم سو گریٹفل ٹو راشد اینڈ آل آف یو دیٹ یو آلسو like it, because that's the reason that Rashid has now organized a program every fortnight and I'll be looking for that. تمہارا تو سب سے بڑا ریجن ہے نا یہ راشد, اس کا تو غلام رسول کا تو this is the biggest region in NRSP. یہ سر NRSP کا زار ہے. اچھا چلے غلام رسول صاحب اب آپ گل افشانی سر. جو باجوہ صاحب کا بھی بہت شکریہ سر. جو اس میں کوئی شک نہیں, باجوہ صاحب جو وہ چلے سر غلام رسول شروع کریں یار, آگے چلیں. لیٹس سٹارٹ آف, وقت ضائع نہیں کرتے, چلیں آپ. تو چلو ٹھیک ہے سر. جو ٹھیک ہے جی چلیں جی. سر جو میں تو سرگودا میں بیٹھا ہوں. ہمارا جو ٹیم ہے یہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو میاں والی ہے. میاں والی میں ہمارے ٹیم اور ایل ایس او کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو اور ٹو میڈم المازیہ جو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہے, جو وہ پروجیکٹ میاں والی میں میڈم المازیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتی ہوں سرگودا ریجن کی بہاف پہ چیئرمین شعیب سلطان خان صاحب کو, راشد باجوہ صاحب کو, آغا علی جواد صاحب کو, اور تمام معزز مہمان جو ہمارا یہ زوم کے ذریعے ہمیں اٹینڈ کر رہے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں. تو سب کو ہم سرگودا ریجن کی بہاف پہ ویلکم کرتے ہیں. سر یہاں پر جو ہے سرگودا ریجن کا جو ڈسٹرکٹ میاں والی ہے اس کی تحصیل عیسیٰ خیل میں ایک یونین کونسل ہے کمر مشانی, اور اس کی ایل ایس او کا نام ہے موہاڑ ویلفیئر آرگنائزیشن.
ان کے تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں اپنے LSO کے لوگوں کو بھی ویلکم کرتی ہوں. یہاں پر سر ہم لوگ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے، اور سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم تلاوت کلام پاک سے اس میٹنگ کا آغاز کر لیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی اور ہماری لرننگ بھی، اور لاسٹ میں کوسچن آنسر بھی. تو ہم تلاوت کلام پاک سے جو ہے وہ آغاز کریں گے، اس کے بعد ہم تمام ممبران اپنا انٹروڈکشن بھی کرا لیں گے. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سر المازیہ خان میرا نام ہے. میں اس ریجن میں ایک تو سپیپ پروجیکٹ کو ایز اسسٹنٹ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر دیکھ رہی ہوں. سپیپ جو ہمارے یہاں کے 3 ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں میاں والی، بکھر اینڈ خوشاب، اس کو ایز اسسٹنٹ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر دیکھ رہی ہوں، اور سرگودا ریجن میں SM کو بھی دیکھ رہی ہوں. تو یہ میرے ساتھ عبد الباقی صاحب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد الباقی ہے، اور LRSP میں مجھے 22 سال ہو گئے ہیں. گزشتہ 6 سال سے میں LRSP کریڈٹ ڈسٹرکٹ میاں والی کو دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے میں بکھر میں تھا، وہاں پر موبلائزیشن کو میں دیکھ رہا تھا سر. تو ڈسٹرکٹ میاں والی میں جو LSO ہے قمر مشانی، اس میں آج کی جو میٹنگ ہے اس میں چیئرمین شعیب سلطان خان صاحب، CEO راشد باجوہ صاحب، GM آغا علی نواز صاحب، اور تمام LRSP کے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو لنک میں شرکت ہے، ان سب کو LSO قمر مشانی کی اس میٹنگ میں ڈسٹرکٹ میاں والی کی طرف سے میں ویلکم کہتا ہوں. شکریہ سر. سر یہ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، اس کے بعد ہم ڈیٹیل پریزنٹیشن پہ جائیں گے. السلام علیکم. میرا نام شاہدہ ہے. میں اکتوبر 2000 میں سرمت خیال تنظیم کی ممبر بنی. اس کے بعد LSO نے مجھے 2 سال کے لیے سوشل موبلائزر بھی لیا، اور اس وقت میں LSO کی چیئرپرسن ہوں. السلام علیکم سر، میرا نام کلثوم بی بی ہے. میں پہلے ویو کی ممبر تھی، پھر پہلے CU کی تھی، وقت ویو کی تھی، پھر LSO میں فنانس سیکٹری کے عہدے پہ کام کر رہی. میرے نام زہرا بی بی ہے، LSO دی ممبر ہوں. میرا نام بخمورہ بی بی ہے. میری تنظیم کا نام محلہ احمد خیل F1 ایگزیکٹو باڈی کی سربراہ. السلام علیکم. میرا نام سترہ بی بی ہے. میری تنظیم کا نام محلہ احمد خیل 1 A1. السلام علیکم سر، میرا نام نجمہ بی بی ہے. میں ملیوال تنظیم کی ممبر ہوں، اور LSO میں میرا عہدہ ایگزیکٹو جنرل سیکرٹری کا. السلام علیکم. میرا نام سنگرین بی بی ہے. میں تنظیم عمر خیر محلہ F1 کی ممبر ہوں. السلام علیکم. میرا نام کوثر بی بی، سر میں بلند خیل تنظیم کی ممبر بھی ہوں، اور جوائنٹ سیکرٹری میرا عہدہ LSO. السلام علیکم. میرا نام نسرین بی بی ہے. میں شملوال تنظیم کی ممبر ہوں، اور LSO میں میرا عہدہ جو ہے انفارمیشن سیکرٹری کا. السلام علیکم سر، میرا نام محمد وقار احمد ہے. میں CEO گلشن کالونی کا ممبر ہوں، اور LSO کا بھی ممبر ہوں. السلام علیکم. میرا نام عبد الرحمان خان ہے، اور سابق چیئرمین موہاڑ ویلفیئر آرگنائزیشن، اور اب LSO کا ممبر ہوں. السلام علیکم. میرا نام عارف خان ہے. CEO کوریاں والا کا ممبر ہوں، اور VO کوریاں والا کا ممبر ہوں. LSO میں بھی ممبر ہوں. میرا نام شمیم بی بی ہے. میں شریف خیال انہوں نے ممبر ہوں. گاؤں نا ٹھنڈیاں. السلام علیکم. میرا نام رشیدہ بی بی، میں LSO کی ممبر ہوں، اور گاؤں سے آئی ہوں.
तंजीम का नाम है मोहल्ला उमर खैल एहवान की सदर हूँ। सर ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, मेंबर्स के साथ शामिल हैं। अभी जो है वो एलएसओ की जो चेयरपर्सन हैं उनको मैं दावत देती हूँ कि वो डिटेल प्रेजेंटेशन जो इस एलएसओ ने काम किए हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। तो शाहिदा हमारे साथ हैं। सर ये जो है मर्दों की भी तंजीमात हैं, ख़वातीन की भी तंजीमात हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बहुत हार्ड एरिया था ईसा खेल में, तो मोबिलाइजेशन जो है वो बहुत टफ था स्टार्ट में। इवन देन मर्दों को मोबिलाइज करना भी बहुत मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता उनको मोबिलाइज किया, सीओज बनी, फिर मेल सीओज के बाद मिक्स्ड सीओज का कंसेप्ट हम लाए ग्रेजुअली। फिर मिक्स्ड सीओज के बाद जो है विमेन फोकस्ड सीओज बनना शुरू हुई। तो स्टार्ट में ये जो एलएसओ है इसका जो टोटल जो एग्जेक्टिव बॉडी है, जो काबीना के जो मेंबरान थे वो तमाम मर्द थे। फिर ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग्स हुई, इनके साथ अटैचमेंट रही मुख्तलिफ इदारों की। बहुत शुक्रिया अलमाजिया। तो सबसे पहले मैं शोएब साहब, राशिद बाजवा, आगा अली जवाद, गुलाम रसूल साहब को खुश आमदीद करती हूँ कि इन्होंने हमें टाइम भी दिया और हमें मौका दिया बराह रास्त बात करने का। तो पहले हम शोएब साहब को किताबों में पढ़ते थे, लेकिन आज हमारी बराह रास्त मुलाकात हो रही है। हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि आज हम सब मिलकर अपने काम को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले एलएसओ का नाम मोहार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कमर मशानी है और यूनियन काउंसिल पक्का कमर मशानी। यूनियन काउंसिल पक्का कमर मशानी तहसील ईसा खेल जिला मियां वाली। इसके 2 मौज़ाजात हैं जिसमें 61 कुल घराने हैं और 25,288 आबादी है। इसमें 16 प्राइमरी स्कूल, मिडल 4 और 1 हाई स्कूल है। डिस्पेंसरी नहीं है। आरएचसी 1 है। माल मवेशियों का अस्पताल भी 1 है और हमारे यहाँ ज़रिया मुआश जो है वो तकरीबन ज़राअत माल पे है। कुछ लोग कारोबार और मुलाजमत भी करते हैं। एलएसओ प्रोफाइल। एलएसओ का मुकम्मल नाम मोहार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कमर मुशानी है। इसकी तारीख तश्कील 25 दिसंबर 2007 है और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। कुल तंजीमात हमारी 183 है, जिसमें औरतों की तंजीमात 93, मर्दों की 75 और मिक्स तंजीमात 15 हैं। और तंजीमात के जो कुल मेंबरान हैं वो 2731 हैं, जिसमें मर्द मेंबर्स 1075, खवातीन मेंबर्स 1656 और हमारे पास मुनज़्ज़म घराने 2670 हैं और सीआरपी की तादाद 22 है, जिसमें 12 सीआरपी पेड हैं और 10 नॉन पेड है। हमारे वीओस की कुल तादाद 10 है, जिसमें मर्दाना वीओस 5 है और खवातीन की भी 5 है। जनरल बॉडी मेंबरान की तादाद 366 है, जिसमें 206 खवातीन और 160 मर्द हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान की कुल तादाद 20 है, जिसमें 14 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। काबीना के मेंबरान जो है वो 5 हैं। इसमें शाहिदा बीबी में खुद चेयरपर्सन, कलसूम बीबी फाइनेंस सेक्रेटरी, नजमा बीबी जनरल सेक्रेटरी, नसरीन बीबी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और कौसर बीबी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। एलएसओ के क्या का मकसद? हमारा मकसद मुआशरे में गरीब, पसमानदा और लाचार अफराद, जिनमें मर्द भी खुसूसन खवातीन भी शामिल है, इनका मेयार जिंदगी को बुलंद करना, इनकी आमदन में इजाफा करना, इनकी फनी सलाहियत, तालीम, समाजी और मुआशी तरक्की में इजाफा करके उन्हें मुआशरे का मुफीद रुकन बनाना और लिसानी, मजहबी, सियासी इख्तलाफात को कम करना, गरीब और छोटे काश्तकारों की आमदन में इजाफे के लिए इकदाम करना।
गुर्बत की दर्जाबंदी बजरिया पॉवर्टी स्कोर कार्ड, यहाँ पे ये पता चलता है कि इसमें लाचार, गरीब तरीन, गरीब और मुतवस्त घराने कितने हैं। 0 से 11 के वो लाचार अफराद हैं, 282 घरानों की तादाद है, तो उसमें 277 मुनज़्ज़म घराने हैं और इनकी परसेंटेज 98% है। 12 से 18 ये गरीब तरीन है, जिसमें टोटल जो घराने हैं वो 568 और मुनज़्ज़म घराने 515 है और 90% हमारे पास परसेंटेज है। 1930 हमारे पास गरीब हैं और उसमें 838 जो टोटल घराने हैं, 750 मुनज़्ज़म और 89% हमारे पास मुनज़्ज़म घरानों की परसेंटेज है। 24 से 100 जो है ये मुतवस्त और खुशहाल घराने हैं और टोटल ये 1473 है और 1128 मुनज़्ज़म है और 76% है। इस तरह से ये कुल 3161 घराने हैं, जिसमें 2670 मुनज़्ज़म और 84% मुनज़्ज़म है। यूसीपीपी आरपी प्रोजेक्ट में एनआरएसपी और आरएसपीएन के साथ जितना हमने काम किया, आमदन में इजाफे के लिए जो हमने इमदाद की वो 0 से 9 स्कोर के घराने थे और ये 96 घराने से मुस्तफीद हुए हैं। यहाँ पे हमने ग्रांट दी है। ये वो 96 लोग हैं और घराने हैं जो ग्रांट लेकर इन्होंने किसी ने बकरी ली है, किसी ने सिलाई मशीन ली है और अपने घर की आमदन में इजाफा किया है। इस तरह से छोटे कर्जजात भी दिए जो 0 से 18 स्कोर के लोग थे, उनको 567 लोगों को कर्ज दिया और उसके बाद फिर ओपन होने के बाद 2210 लोगों ने हमसे कर्ज लिया है। तरबियती ट्रेनिंग कोर्स 10 से 24 स्कोर वाले थे, उनको तरबियत दी ताकि वो अपने आमदन में इजाफे के लिए घर वालों के साथ हाल बटाई करें, जैसे ब्यूटिशियन की तरबियत दी, सिलाई कढ़ाई की, पंखे की, बान मशीन की और हैवी मशीनरी की। ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई की तरबियत लेने के लिए खवातीन इस्लामाबाद गई थी। वहां से तरबियत लेने के बाद अपने गांव में आकर मजीद बच्चियों को भी तरबियत दी, जिन्होंने अपने इलाके में काम किया और दूसरे लोगों ने देख के भी अपनी बच्चियों को तरबियत के लिए भी डिमांड की और ये बच्चियां अब अपने घर की आमदन में मुसलसल साथ साथ काम कर रही हैं और आमदनी में इजाफा भी कर रही है। इसमें टोटल 211 खवातीन हैं, 211 लोग हैं, जिसमें 132 खवातीन और 79 मर्द हैं। छोटे कर्जदार जो एनआरएसपी से लिए, जो 25 से 34 स्कोर के लोग थे, वो 614 हैं और छोटे पैमाने पे जो हमने स्कीमें 10 की हैं, ये समर्सिबल पंप लगे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे 1500 घराने मुस्तफीद हुए हैं। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम किया। इनमें टोटल 13 स्कूल थे, जिसमें 5 स्कूलों को फर्नीचर दिया तालबात के लिए, 3 स्कूलों में हमने हैंड पंप लगाए और 5 स्कूलों को स्टाफ चेयर्स बनवा के दी। ट्रेनिंग बाय सीआरपी, इलाके में मुख्तलिफ सर्विसेज देने के लिए सीआरपी ने ट्रेनिंग की, जिस तरह सेहत, तालीम, मोबिलाइजेशन, लाइफ स्टॉक, और ये 21 अफराद ने ली। सीएमएसटी, खवातीन ने सीएमएसटी की, जिसमें 8 इवेंट्स है और 163 खवातीन ने तरबियत ली है। सीआरपी को फील्ड में ट्रेनिंग कराने के लिए टीओटी कराई, जो रिकॉर्ड कीपिंग और सीएमएसटी पे मुश्तमिल है और ये टोटल 12 लोग थे, जिसमें 7 खवातीन और 5 मर्द। इनपुट सप्लाई सेंटर ये एक लगाया हबीब शमलवाल में। यूएसएड 2010 के सैलाब से मुतासरा इंतहाई गरीब घरानों के लिए मुनासिब छत का इंतजाम किया। ये 2 यूनियन काउंसिल्स में किया, कच्चा कमर मशानी और पक्का कमर मशानी। सैलाब से मुतासरा घरानों की तंजीमों में शमूलियत और उनके लिए एक कमरे के मकान की तामीर की, जिसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत 59,66,637 है। यूएसए का जो बजट था वो 49,27,098 है और एलएसओ ने अपनी आमदन से जो शेयर इसमें डाला वो 10,34,539 है और 35 घराने इससे मुस्तफीद हुए हैं। एनआरएसपी के साथ की गई सरगर्मियां 2010 में गरीब और लाचार अफराद के लिए मुफ्त हेपेटाइटिस और वैक्सीन के 3 मराहिल किए, क्योंकि फ्लड के बाद ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी।
तो वैक्सीनेशन के 3 मराहल में हमने ये किया। पहले मरहले में खवातीन मर्द बच्चे तीनों मरहले में थे, लेकिन पहले मरहले में 36 खवातीन 26 मर्द और 38 बच्चे थे। फिर दूसरे मरहले में 36 खवातीन 25 मर्द और 38 बच्चे थे और टोटल 99 हुए। तीसरे मरहले में 36 खवातीन 24 मर्द और 38 बच्चे थे, जिसमें टोटल 98 लोग थे। इस तरह टोटल 108 खवातीन 75 मर्द 114 बच्चे और टोटल 297 लोगों को हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन कराई। एनआरएसपी के साथ तालीमी बालगा के लिए पाल्स प्रोग्राम ऑन अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ स्किल, ये वो प्रोग्राम है जिसने लोगों को जिंदगी में वो तब्दीली लाई। जो खवातीन घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो मुसलसल 3 मंथ तक एक सेंटर में आके तालीम हासिल कर रही थी और उस तालीम में उन लोगों ने ना सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा बल्कि अपने मर्दों के नाम भी लिखना शुरू किए। और इस यूनियन काउंसिल में लिटरेसी रेट बिल्कुल ना होने के बराबर था, लेकिन पाल्स प्रोग्राम ये वो लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें खवातीन ने खुद अपने शौक से तालीम हासिल की। उसके बाद अपने बच्चों को स्कूलों में तब भेजना शुरू किया जब वो खुद एजुकेट हुई। हमने यूनियन काउंसिल में जो मराकज कायम किए वो 40 है और इसमें असातिज़ा की तादाद भी 40 है, जिसमें खवातीन असातिज़ा 37 और मर्द असातिज़ा 3 हैं। जो इसमें तालबात ने दाखिला दिया वो 1700 है और कोर्स भी इन्हीं मुकम्मल किया 1700 ने। और इसमें कुछ दर्जा बंदी थी बलहाज उम्र, तो 17 ता 25 साल के 25% है, 26 ता 40 साल इसमें 45% लोग हैं और 40 साल से ऊपर जो है वो 30% इसमें लोग हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारे पास ये प्रोग्राम एक कामयाबी की सूरत में आया और यहाँ पे खवातीन जब एजुकेट हो गई, उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, बिजली के बिल पढ़ना शुरू कर दिए। जहाँ डॉक्टर के पास जाती थी वो उनको अपना नंबर भी याद होता था और बोर्ड भी पढ़ लेती थी और अपने बच्चों को स्कूलों में भी दाखिल करना शुरू कर दिया। CMST की तरबियत, इस NSP के साथ जो तरबियती सरगर्मी हुई उसमें CMST में 200 खवातीन शामिल थी, मर्द खवातीन, और FMA की जो थी वो 60 तरबियतें हुई हैं। एक्सपोजर विजिट किए कश्मीर, बखर और समास में। यहाँ विजिट करने के बाद अपने इलाके में खवातीन ने आके काम करना शुरू किया। जो गैर मुनज़्ज़म घराने या गैर मुनज़्ज़म लोग थे उनको भी मुनज़्ज़म किया और इस वक्त जो खवातीन की तादाद है वो तकरीबन 95% जो है LSO में काम कर रही है। फिदा फाउंडेशन डेरा इस्माइल खान से जो वफ्द की विजिट है वो 6 हैं, जिसमें 6 लड़कियों सोशल ऑर्गेनाइजर 6 और 6 फीमेल ऑर्गेनाइजर और 6 मर्द सोशल मोबिलाइजर को तरबियत दी गई, जिसमें उन्होंने टॉप किया और वो लोग RSPN का हिस्सा बने। जेंडर पे 10 तरबियतें हुई हैं यहाँ पे और केस स्टडी पे 6 तरबियतें हुई हैं। NSP, PPF, SLBAP के साथ की गई छोटी स्कीमें, टोटल जो स्कीमें की हैं हमने 28 हैं, जो PPF की मामला से 7, SLBAP की मामला से 20, NRSP की मामला से 1। इसकी जो टोटल लागत है वो 66,79,536 है। मावन इदारों का जो हिस्सा है वो 49,54,509 और तंजीमात का इसमें जो हिस्सा है वो 17,25,027 है और 1632 जो घराने हैं वो मुस्तफीद हुए। वाइस प्रोग्राम, इसमें पानी की तफसील बताऊंगी। पानी पे हमने 178 सेशन किए हैं। उस सेशन में आगाही दी है कि पानी किस तरह से पिया जाता है, मतलब कि उसको साफ करके किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, कौन कौन से तरीकों से इस्तेमाल करना है। और इसमें 2723 घराने मुस्तफीद हुए हैं और पानी के हमने 6 टेस्ट कराए हैं, जो इसमें एक टेस्ट जो है वो पानी पीने के काबिल था, 3 केमिकल अनफिट थे, 1 बायोलॉजिकल अनफिट था और 1 बायोलॉजिकल केमिकल अनफिट था। इस वक्त जो रिजल्ट है वो है हमारे पास उबाल कर जो पानी पीते हैं वो 575 घराने हैं,
टैबलेट से जो पानी साफ करके घराने पानी इस्तेमाल करते हैं वो 220, और दूसरे तरीकों से जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो 380 घराने हैं। दूसरे तरीकों से मुराद कुछ लोग पानी को धूप पे रख देते हैं, टैंकियां बना के उन लोगों ने रख दी है ताकि वो पानी जो है गर्म भी रहे और उसमें जरासीम भी खत्म हो, और कुछ लोग जो है वो फटकड़ी डाल देते हैं ताकि वो जरासीम भी खत्म हो जाए और पानी भी साफ हो जाए। ये पानी पे जो हमने टेस्ट किए हैं उसकी तस्वीर हैं। रेड कलर कौन सा? हिफाजती टिकाजात 187 सेशन हमने हिफाजती टिकाजात पे करे हैं, जिसमें खवातीन को हमने ये बताया कि सेहत के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल किस तरह से किया जाता है, खुराक में किस तरह हमने उनको बताया कि किस तरह साफ करके खाई जाती है या कौन सी खुराक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और सेहत को बेहतर रखने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसलिए 2805 सेशन से मुस्तफ़ीद घराने हुए। हिफाजती टीकाजात पे हमने 6 कैप लगाए हैं और 1000 बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए हैं और 910 हिफाजती टीकाजात हमने खवातीन को लगवाए हैं। ये वो खवातीन थी जो हिफाजती टीकों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था और ना ही बच्चों का। ये कुछ तस्वीर है जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चों को कतरे भी पिलवा रहे हैं, डॉक्टर के साथ फ्री मेडिकल कैंप भी लगवाए हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट को हम हर गांव में लेके आते हैं ताकि जो लोग नहीं पहुंच रहे जल्दी तो उनके लिए मेडिसिन का इंतजाम हो सके टाइम पे। और जो लोग कतरे नहीं पिलवा रहे थे, ये बच्चों की तस्वीर है, वो लोग अब कतरे भी पिलवाने लगे हैं। सेहत और सफाई 187 सेशन हमने सेहत और सफाई पे किए हैं। इसमें गंदगी के जो ढेर थे वो भी उठवाए हैं अपनी मदद आपके तहत, और लोगों ने खुद से भी अब वो उठाना शुरू कर दी हैं। जगह भी मखसूस कर ली है कि अब हमने जो गंदगी है वो मखसूस जगह पे फेंकनी है। कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि अभी हमने ये गंदगी जो है इसको जलानी है। तो इस तरह 2805 घराने मुस्तफीद हुए हैं। सफाई के जो हमने मुहिम चलाई है वो 9 और जो 6 गो इसमें हमने साफ कर लिए हैं। 715 घराने ऐसे हैं जो कूड़ा करकट को तल्फ करते हैं। 520 घराने जो है वो मखसूस जगह पे कूड़ा करकट फेंकते हैं। 314 घराने जो है वो खाद बनाते हैं और इस वक्त डस्टबिन इंस्टॉल हो चुके हैं 12, और हम लोग खुद उन डस्टबिन को साफ भी करते हैं हफ्ते में एक बार, और उस कूड़ा करकट को हम लोग जलाते भी हैं और इस कुछ को खाद भी बनाते हैं ताकि वो कूड़ा करकट जो है जमीनों में भी इस्तेमाल हो सके। ये कुछ तस्वीर हैं जो कूड़ा करकट की पहले जो पोजीशन थी उसके बाद जो पोजीशन है और जो गांव साफ हुए हैं। सबसे बेहतरीन चीज ये चूल्हा है जो मुतारफ करवा रहे हैं, क्योंकि धुआं दमा ऐसी बीमारी है जो धुएं से फैलती है और हमारे यहाँ दमे की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम घरों में चूल्हा जलाते हैं तो धुएं का मुनासिब तरीका नहीं है कि किस तरह बाहर निकले, और ये वो चूल्हा है कि इसका धुआं भी ऊपर जा रहा है, गंदगी भी नहीं हो रही है और एक वक्त में हांडी भी बन रही है और रोटी भी बन रही है। इस तरह हमारे अखराजात भी कम हुए हैं इस चूल्हे से। तालीम, चूंकि लिटरेसी रेट मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि पाल्स प्रोग्राम की वजह से कुछ लोगों ने ये किया कि अपने बच्चों को दाखिल कराना शुरू कर दिया, अगर अभी भी इसमें बेहतरी लाने की जरूरत थी तो एक हम तालीम पे सेशन दिए खवातीन को किया, उसमें स्पेशली खवातीन को, ताकि वो अपनी बच्चियों को प्राइमरी कराने के बाद घरों में ना बैठाएं, बच्चों को बाहर ना छोड़ें या बकरियां चराने के लिए ना भेजें, बल्कि स्कूलों में दाखिल कराएं जो उनकी उम्र पढ़ने की है। तो 128 सेशन हमने किए तालीम पे। 2048 घराने मुस्तफीद हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमने 7 मीटिंग्स की हैं जिसमें स्कूल काउंसिल को फॉलो किया, वो 28 स्कूल काउंसिल्स हैं। हमारे सर्वे के दौरान 4 से 12 साल के जो बच्चे थे वो जो स्कूलों से बाहर थे वो 1680 थे और 1322 ऐसे बच्चे थे जो पहले स्कूलों में दाखिल हो चुके थे और 252 बच्चे हमने दाखिल कराए हैं और 106 बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। इसके लिए हमारी ताक़त जारी है। ये कुछ तस्वीर है जिसमें खवातीन के साथ हम लोग तालीम पे सेशन कर रहे हैं और स्कूलों में भी जाके कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, और एक ठंडिया वाले स्कूल की तस्वीर जिस पर कर दी है। इस पे ये वो स्कूल है जहाँ पे बच्चे इस वक्त
जा रहे हैं। शहरी हकूक पे 105 सेशन किए, जिसमें 1795 घराने मुस्तफीद हुए हैं, 375 शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं, 230 बे फॉर्म बनवाए हैं और 78 डेथ रजिस्ट्रेशन कराई हैं, 315 जो है पैदाइश का इंदराज कराया है और 128 जो है वो निकाह का इंदराज कराया है। ये वो तस्वीर हैं जो हमने वहाँ के यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वहाँ उनसे मतलब मीटिंग्स की हैं और मीटिंग्स की हैं ख़वातीन के साथ कि वो अपने हकूक़ अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं और बच्चों के बेफाम बनवाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए की गई सरगर्मियाँ 139 लोगों सेशन किए हैं, जिसमें आगाही के सेशन दिए कि हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ साबुन से धोएं और कोरोना से बचाव के लिए पम्फलेट और किताबचों की जो तकसीम की है वो 1588 है। गलियों और बाजारों में जो बैनर और पोस्टर्स लगाए हैं वो 175 है। लाउड स्पीकर के जरिए जो ऐलानात कराए वो 53 है और मसाजिद में जो ऐलानात कराए वो 85 हैं। SMS के जरिए आगाही दी 1435 और एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में जो घरों की रजिस्ट्रेशन हमने कराई वो 1030 है, जिससे 225 घराने जो हैं वो एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम से ग्रांट ले रहे हैं और 113 जो घराने हैं वो साबर और सैनिटाइजर की तकसीम की है 113 घरानों में। और इस दौरान हमने राशन भी तकसीम की है क्योंकि लोग मजदूरी तो कर नहीं सकते थे और हम लोग ने मिलकर एक छोटी सी कमेटी बनाई और उस सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे करके पका पकाया खाना भी घरों तक पहुंचाया। कोरोना के दौरान भी हमने काम जारी रखा, बाहर घरों में जाके ब्रोशर तकसीम किए, साबन से हाथ धोने की तरबियत दी, ये वो तस्वीर है और फासले पे बिठा के भी खवातीन को सेशन कराया। वॉइस प्रोग्राम के तहत मुस्तकबिल का लाहे अमल। मुस्तकबिल में टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिल के साथ मिलकर सेहत और सफाई को मुहिम को जारी रखेंगे, नादरा से मजीद लिंक करेंगे ताकि लोग के मजीद शनाख्ती कार्ड बनवाएं और ये जो हमने शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं ये बिल्कुल फ्री बनवाए हैं। नादरा चौके जो भी बना जाता है उससे फीस लेते हैं और वो बताते हैं कि वो मंथली आपने शनाख्ती कार्ड लेना है, हफ्ते वाला लेना है, तो उसकी बाकायदा फीसेस हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ये शनाख्ती कार्ड बिल्कुल फ्री बने। पीने के साफ पानी के मजीद टेस्ट भी कराएंगे और पानी को उबाल कर पीने की मुहिम जारी रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएंगे। गवर्नमेंट के इदारों महकमा सेहत, तालीम, म्यूनसिपल कमेटी के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने इलाके की बेहतरी के लिए मजीद काम करेंगे। तंजीमात के मेंबरान की सहूलियात के हसूल के लिए गवर्नमेंट के इदारों, स्कूल, हस्पताल, ज़राअत की तरफ रुजू करने के लिए राग़िब करेंगे। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को बेहतर करने के लिए मसनूई चूल्हे मुतारफ कराएंगे। कोरोना के हवाले से ज्यादा लोगों को आगाही देंगे और CF को दोबारा चलाने के लिए मजीद काम करेंगे। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की तफसील। इसका आगाज 2009 में हुआ। टोटल जो फंड था, बजट था इसका 26 लाख और 2210 लोगों ने हमसे लिया। इसमें एक बार कर्ज लेने वालों की तादाद 1332 है। एक से ज्यादा जो लोगों ने कर्ज लिया वो 878 है। 200 छोटे कारोबार के लिए लोगों ने कर्ज लिया और 1136 लोगों ने माल मवेशी के लिए कर्ज लिया। 874 जरी मकासद के लिए लोगों ने कर्ज लिया। इसकी जो रिवॉल्विंग की सूरत में डिस्बर्समेंट बनी वो 4 करोड़ 70 लाख है। मौजूदा हालत 68 लाख है फंड की और रिकवरी की जो शरह है वो 100% है। OPP की मदद से कर्ज के लिए की गई सरगर्मियां। OPP उरंगी पैलेट प्रोजेक्ट। CF की डिमांड को देखते हुए LSO ने कराची में OPP की से रब्ता किया और अपनी तंजीमात के मेंबरान को कर्ज तक रसाई के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए कर्ज लिया, जिसमें 327 घरानों को कर्ज दिया गया और इसकी जो रिकवरी है वो 100% है। चूंकि इसके सर्विस चार्जेस ज्यादा थे तो कर्ज को वापस कर दिया गया और उसको मनकता इसलिए कर दिया गया ताकि हमारे लोगों पे ज्यादा बोझ भी ना आए। पहले जो हमारे परसेंटेज थी वो इससे चूंकि मुख्तलिफ थी। गवर्नमेंट और दूसरे इदारों के साथ जो हमने काम किया, SPO आवाज और जवाबदेही प्रोग्राम, ये टोटल जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट के इदारों के साथ हमने किया, ये एडवोकेसी पे मुश्तमिल था।
اور اس میں 3161 جو گھرانے ہیں وہ مستفید ہوئے. آرچینووا اس کے صحت و صفائی پہ 16 سیشن کرائے اور 470 کٹس تقسیم کی. یو ایس ایڈ اس کے 35 مکانات بنائے. SLBP پائپ ایریگیشن 4 کی اور 900 گھرانے مستفید ہوئے. ریلیف انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر ہم نے 27 مکانات بنائے اور 27 گھرانے مستفید ہوئے. مسلم ایڈ کے ساتھ مل کر صحت و صفائی پہ 13 سیشن کیے اور 10 ہینڈ پمپ لگائے جس سے 200 گھرانے مستفید ہوئے. سول ایگری پاکستان کے ساتھ ہم نے لائف سٹاک کی تربیت کی جس سے 200 گھرانے مستفید ہوئے. بلدیات سے ہم نے شنگر ڈلوائی 60,000 فٹ پہ. یہ راستہ بالکل کچا تھا اور یہاں سے لوگوں کے گزرنے کے لیے بہت مشکل تھا. شنگر ڈلوانے کے بعد یہ لوگ نہ صرف آسانی سے آ جا سکتے ہیں بلکہ وہ پریشانی بھی ختم ہوئی کہ جو گرد و غبار اس سے پھیل رہا تھا. 50,000 فٹ پہ سلیب ڈلوائے اور 4 ڈائیورشن وال لگائے. اس میں 2 تالاب بنوائے. یہ وہ پہاڑوں کے ساتھ علاقے ہیں جہاں پانی کی بالکل کمی ہے اور تالاب بنانے کے بعد وہاں پہ جو پانی ہے جانوروں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. 3 سمرسیبل پمپ لگوائے یہاں پہ. نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے 8,000 شناختی کارڈ بنوائے ہیں اور بیت المال سے خواتین کو زکوٰۃ فنڈ دلوایا. یہ زکوٰۃ فنڈ 45 خواتین نے لیا اور 15 خواتین کو روزگار کے لیے فنڈ دیا گیا. یونیسیف کی معاونت سے سمرسیبل پمپ لگوائے 12. یہ وہ پمپ ہے جو 250 سے 300 فٹ یہ بور ہوتا تھا جہاں پہ, اور یہ بالکل پہاڑوں کے ساتھ علاقے ہیں جہاں پہ پمپ لگانے کے لیے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کے پاس پانی کمی ہونے کی وجہ سے وہ گدروں پہ پانی دوسرے علاقوں سے لے کے آتے تھے. یہ سمرسیبل پمپ لگنے کے بعد علاقے کے لوگ جو ہیں یہیں سے پانی بھرتے ہیں اور ان کی وہ دوری کا مسئلہ جو وہ تھا ختم ہو گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کر خواتین کی جو بند سمیں تھی بالکل بھی بند ہو گئی تھی. ان کے پیسے تو آ گئے تھے لیکن وہ کھل بھی نہیں رہی تھی. ان خواتین کا ہم نے نادرا پہرے کرایا. نادرا سے بایو میٹرک کرائی. بایو میٹرک کرانے کے بعد ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے کر گئے اور ان کی جو سمیں بند تھی وہ کھلی اور اب وہ ہر مہینے پیسے لے رہی ہے. خواتین لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اس میں یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے 6500 مرغیاں ہم نے خواتین کو دلوائی ہیں اور جانوروں کی ویکسین بھی کرائی ہے 2600. 150 بطخیں دی ہیں جیسے 600 گھرانے مستفید ہوئے اور بیواؤں کو گائے بھی دلوائی ہیں 32. دوسری LSOs کے جو وزٹ آئے ہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے بہاولپور, وزیرستان, بکھر, لکی مروت, سوات, سماس, تبی سر, وہاں بچرا اور موسیٰ خیل. تانگ وسیب کی معاونت سے ہم نے زراعت کے لیے کھاد اور بیج دیے جو 200 گھرانے مستفید ہوئے. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ جو سینٹر تھا وہاں پہ ہم نے 350 لڑکیوں کو تربیت دلوانے کے لیے داخلے دلوائے جس میں بیوٹیشن, سلائی, کڑھائی, کمپیوٹر, IT. ڈینگی سے بچاؤ کے 80 سیشن کرائے ہیں. خواتین کو مفت سلائی مشین جو فراہم کی وہ 35 ہیں اور 302 کے کیس سمیت یونین کونسل مضافات میں مرد ممبران کے ذریعے صلح کرائی. ٹوٹل یہ وہ کیس ہیں جو LSO کے ممبران فیصلے کرتے ہیں, لوگوں کو عدالتوں میں نہیں جانے دیتے. جب لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو قبیلے ہیں وہ دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. LSO کے ممبران کے پاس چونکہ ایک سکل ہے کہ وہ ان لوگوں کو منا لیتے ہیں اور ان کو عدالت تک بھی نہیں جانے دیتے, انہیں موبلائز کرتے ہیں. اور 790 وہ کیس ہے جس میں لڑائی جھگڑا, زمینوں کے کیس یا بچوں کی لڑائی یا قتل کے کیس, اور ایک 302 جو قتل کا کیس تھا اس کی صلح کرائی. یہ وہ کیس تھا جو 10 سال سے مسلسل ایک دشمنی آ رہی تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو راستے سے بھی نہیں گزرنے دیتے تھے. تو LSO کے ممبران نے دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر صلح کرائی اور اس وقت وہ دشمنی ختم ہو چکی ہے. اپنی مدد آپ کے تحت لڑکیوں کے سکول کا قیام. یہاں پہ ایک سکول ہم نے بنایا. یہ وہ سکول ہے جو
पॉल्स के बाद खवातीन ने अपनी मदद आपके तहत LSO को करारदाद भेजी कि अब हम खुद एजुकेट हो चुकी हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को शहरों में भेजें, क्योंकि वो हमारी यूनियन काउंसिल चौके पहाड़ों के साथ है, तो शहर तक आना बहुत मुश्किल है। तो खवातीन ने मेंबरान ने करारदाद पास की, LSO को दी, और LSO की मामनत से सरमत खैल VO में उस स्कूल का क्या अमल में लाया गया, और LSO की मामनत से ये स्कूल की 75 तलबात हैं, जिसमें 10 बच्चियों ने मैट्रिक किया और 2 ने FSC करने के बाद अपने इलाके में इस वक्त ये टीचिंग कर रही हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में इस्ताज़ा की तादाद मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट इदारों तक रसाई की। अभी जितने भी हमारे इलाका में स्कूल थे वहाँ पे इस्ताज़ा नहीं जा रहे थे, और इस्ताज़ा की तादाद मुकम्मल करने के लिए हमने जाकर CO एजुकेशन से मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके का डेटा दिया कि हमारे पास जो स्कूल्स हैं उनमें साजा की तादाद मुकम्मल है। तो इस तरह से 3 टीचर्स जो हैं वो स्कूल में हायर हुए हैं, और उन्हें वो अभी तक भी काम कर रहे हैं। थैलेसीमा के मरीजों के लिए हमने 4 कैंप लगवाए हैं, और उसमें एक ब्लड डोनर की कमेटी भी कायम की। शजरकारी मुहिम में 40,000 पौधे लगाए। बच्चियों की ट्रेनिंग के लिए सिलाई सेंटर बने, वो 2 थे और 30 बच्चियों ने तरबियत ली इससे। वोटर लिस्टों में वोट अंदराज कराए जो कि 400 हैं। स्कूलों में सहूलियात की कमी की तफसीलात गवर्नमेंट को दी। यहाँ पे हम लोगों ने डेवलपमेंट प्लान बनाए। डेवलपमेंट प्लान इस तरह से स्कूलों का सर्वे किया, वहाँ पे विजिट किए, डेटा लेने के बाद डेवलपमेंट प्लान बनाए, और गवर्नमेंट की प्लानिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आसमा हयात को दिए, ताकि ये डेटा शामिल करने के बाद स्कूलों में सहूलियात की जो कमी है वो ख़त्म हो सके। उसके कुछ अर्से बाद उनके बजट मंजूर हुए। बजट मंजूर होने के बाद चूंकि स्कूलों के अपने भी अकाउंट होते हैं, उनको पहले से गवर्नमेंट बजट दे रही थी लेकिन बहुत कम थे, वो ना होने के बराबर थे। तो गवर्नमेंट ने इन डेवलपमेंट प्लान को देख के उनके बजट दिए उन्हें, और उनको अलहदा अकाउंट ओपन करवाए ताकि वो बजट और जो स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज है वो मुकम्मल हो सके। और इस वक्त स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज है वो तकरीबन मुकम्मल हैं। रूरल हेल्थ सेंटर में, अस्पताल में सहूलियात की कमी का डेटा गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि अस्पताल में भी सहूलियात की कमी थी। स्टाफ के लिए चेयर्स नहीं थे और मरीजों के बैठने के लिए बेंच नहीं थे। तो इस डेटे के मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट ने अस्पताल को भी बजट दिया, जिससे उन्होंने की सहूलियात मुकम्मल हुई। यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरी लगवाई गई जो 10 है। ये वो खुली कचहरी हैं जो हमने दरख्वास्त की थी DC साहब से कि अपने जो हैं लोग हैं उन्हें हमारी कचहरी में भेजे, ताकि जो हमारे लोग हैं उनके मुश्किल जो मसले मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, ताकि उनका हल जल्द निकल सके। इस तरह जो हमने 10 खुली कचहरी लगाई, किसी में DC साहब ने शिरकत की, किसी में AG साहब ने, तो लोगों ने अपने मसले मसाइल बयान किए और मौका पे उनके मसले मसाइल हल भी हुए। तंजीमों के किसान मेंबरान ने अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट से टैरिफ माफ करवाया। ये वो मसला था जो पूरे पंजाब का था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसानों पर ज़राअत जो हमारे इलाके में चूँकि ज़्यादातर लोग काश्तकार करते हैं और ट्यूबवेलों के जो बिल आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे, और मोटरों पे जो चार्जेस आ रहे थे वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं हो रहे थे। तो LSO की मामनत से ये तहरीक चलाई गई। इसके लिए इस्लामाबाद तक धरने भी दिए, लाहौर तक भी धरने दिए और टैरिफ माफ करवाया, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों को मुनाफा मिला। गांव ढंडिया में प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखी गई। ये वो स्कूल है जो बिल्कुल खंडर की शक्ल अख्तियार कर गया था, और वहाँ के जो लोग थे गाँव के वो उसमें जानवर बांधते थे। तो LSO की एक मेंबर ने इस को करारदाद पास करके तंजीम के मेंबरान से LSO में लेके आई कि हमें इसके लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ढंडिया में स्कूल के ना होने की वजह से बच्चियां जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रही।
तो LSO के मेंबरान ने CEO एजुकेशन से जाकर मीटिंग की और ढंडिया वाला जो स्कूल था उसके लिए का बजट जो था वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर टीचर्स जो थे वो हायर करवाए और उस बजट को इस्तेमाल करवाने के लिए भी CEO एजुकेशन से बातचीत की गई। इस वक्त वो प्राइमरी स्कूल जो है अब एलिमेंट्री तक पहुँच चुका है और उसके एलिमेंट्री और हाई के लिए भी कोशिश जारी है और इस वक्त यहाँ पे 150 तालिबात जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और इसमें असातिज़ा भी काम कर रहे हैं। सैलाब में की गई सरगर्मियां 30 और 31 जुलाई 2010 को गाड़ियों के जरिए 300 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। 2010 का जो फ्लड था चूँकि वो सबको याद है और यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। LSO के 80 अफराद जो है मुसलसल 3 दिन तक रेस्क्यू सरगर्मियां सर अंजाम देते रहे। 2 दिन कच्चा और पक्का कमर मशानी में सर्वे किया जिसमें पक्का कमर मशानी में मुतासरा घराने 750 और कच्चा कमर मशानी में 1680 घराने सामने है। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक 170 अफराद को पक्का पकाया खाना दिया और गवर्नमेंट स्कूलों में रहायश का बंदोबस्त करवाया। पक्का कमर मशानी में 1150 घरानों को राशन दिया और कच्चा कमर मशानी में 5400 घरानों को राशन दिया। 1600 माल मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुंचाया और जानवरों के लिए 2184 बैग्स वनडे की तकसीम किए। वतन कार्ड के लिए जद्दोजहद करने के बाद मौजूदा मेरवाला में 100 वतन कार्ड तकसीम हुए। कच्चा कमर मशानी में 780 घरानों और पक्का कमर मशानी में 270 गरम बिस्तरे और दीगर सामान दिया। 60 घरानों को टेंट दिए, 50 घरों में कपड़े तकसीम किए और शेल्टर जो बड़ी तरपाले थी वो 1200 अदद थी। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में LSO का हिस्सा पहली बार LSO के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए 2005 के इंतखाबात में कलसूम बीबी जनरल मेंबर की सीट पर मुंतखब हुई और LSO के साबका चेयरमैन अब्दुर्रहमान खान ने पहली बार पिछले लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो यूनियन कौंसिल पक्का कमरा मशानी के चेयरमैन मुंतखब हुए जो कि अभी भी अपने ओहदे पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे इलाके में शादी ख्यालों की बड़ी हुकूमत थी जो वो ये समझते थे कि ये हमारी विरासत है, किसी और आगे आने भी नहीं देते थे। लेकिन अब्दुर्रहमान खान वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन लोगों का मुकाबला किया सामने और अपने काम की मुनासिबत से इलेक्शन में जीत हासिल की और इस वक्त भी अपने ओहदे पे मौजूद हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। LSO के साबका सोशल ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आरिफ खान ने पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया और यूनियन कौंसिल में कौंसलर मुंतखब हुए। LSO का मुस्तकबिल का लाया अमल सबसे पहले हम गैर मुनज़्ज़म घरानों को मुनज़्ज़म करेंगे, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को मज़ीद बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट और दूसरे इदारों के साथ मजीद लिंक डेवलप करेंगे, लोगों की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको मजीद उजागर करेंगे, तरबियत करके उजागर कराएंगे, पानी की बचत के लिए आगाही देंगे, शजरकारी मुहिम को बढ़ाएंगे, छोटे कारोबार के लिए कर्जे में लोगों की मदद करेंगे, माहौलियाती तब्दीली पे आगाही देंगे। मुख्तलिफ इदारों की मुआवनत से इलाके में सेवरेज पे काम करेंगे। अभी इस वक्त भी हमारा OPP उरंगी पायलट प्रोजेक्ट RTA के साथ बातचीत चल रही है ताकि वो उन लोगों ने विजिट भी कर लिया है, वो आए हमारे इलाके में मजीद काम को हम लोग बेहतर कर सके। ख़वातीन और मर्दों को फ़नी तरबियात देंगे, लाचार लोगों का सर्वे करेंगे, यूथ के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोशिश करेंगे, मजीद डोनर और गवर्नमेंट से रब्ता करके पसमानदा इलाकों में देहातों में स्कूल बनाएंगे ताकि मजीद लिटरेसी रेट बढ़ सके, नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवा कर वोटर लिस्टों में अंदराज करवाएंगे। हमारे पास CF और ट्रेनिंग्स की कुछ केस स्टडीज हैं, इसकी डिटेल जो है यहाँ पे मेंबरान खुद बताएंगी। इसमें रशीदा बीबी है, कौसर बीबी, कलसूम बीबी और समरीन बीबी है। जो NRSP के साथ हमने सरगर्मियां की उसकी कुछ तस्वीर हैं। बान
इंडस्ट्री की, फ्लड की और सेमिनार की। RSPN प्रोजेक्ट में जो हमने सरगर्मियां की और लोगों को सिलाई मशीनें दी हैं, ये वो तस्वीर हैं। सैलाब में की गई सरगर्मियां, वोकेशनल ट्रेनिंग्स लेने के बाद जो खवातीन काम करती रही घरों में, ये वो तस्वीर हैं। अवार्ड्स, इसकी ये कुछ डिटेल बताऊंगी कि ये अवार्ड्स हमने RSPN, आवाज़, SPO, चिप से लिए हैं। और अपने इलाके में हमें चीफ गेस्ट के लिए जब बुलाया जाता है तो 7 चीफ गेस्ट के अवार्ड भी हमें देते हैं। और PPF के साथ जो हमने काम किया, PPF का एक चार्ट जहाँ पे हमने आवेज़ा की है, ये वो सर्टिफिकेट हैं जो अपनी कामयाबी के बाद हमने मुख्तलिफ इदारों से लिए हैं। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन करवाई है चैरिटी एक्ट 2018 के। पहले हम लोग सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड थे, लेकिन इस वक्त हम लोग चैरिटी एक्ट 2018 में रजिस्टर्ड है। ये कुछ तस्वीर हमारे पास जेंडर तरबियत की हैं। ये हमारी जो खातून है एक वो तरबियत दे रही है और जेंडर की तरबियत के लिए सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। अब और केस स्टडी के लिए मेंबरान खुद अपनी तफसील बताएंगे। सर, ये LSO की प्रेजेंटेशन है। मैं चाहती हूँ कि पहले केस स्टडी के लिए जो ख़वातीन हैं अगर वो अपनी बता दें हालात, तो उसके बाद फिर आपके जो फीडबैक होगा हमारे लिए या जो क्वेश्चंस होंगे, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो केस स्टडी के लिए अगर पहले कलसूम आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलसूम बीबी है। मैं सन 2007 तो इस तंजीम इस मुनज़्ज़मा पहलो जरी तंजीम सारी शुरू थी है। मैडम शमा आई NRSP नी गड्डी सारे इलाके ने विच लोग देखना आए थे, डर वेना है कहना है भाई कितों गड्डी आई के रहा हुआ, लोग जमीन नाम लेना हुआ। लेकिन उस मैडम को मैं टाइम देता है, मिली मुलाकात की थी। उस आका मैं जाते तंजीम सारी शुरू करेनी है। मैं पूछा वो तंजीम सारी होनी कैसे, उस आका तंजीम सारी एक मनसूबा साजी है, लोगों को इकट्ठा कर, खवातीन हर घर जो एक खवातीन को मैंने जनाने को इकट्ठा किया। 20 खवातीन इकट्ठे थे, असा तंजीम बढ़ाई है। यानी तंजीम ही चुना आका एक सदर थे एक मैनेजर, उस तो त्रिम रोला भी किया है भाई ये सदर थे मैनेजर असा क्या करना। उस आका एक तंजीम एक सदर मैनेजर मर्दों जरा अकाउंट ना थे खुल कमर मिशानी थे, उन्होंने जरा काम भी उस थ्रू थी सी। असा अकाउंट खुलवाया, मैं उसने विच मैनेजर बनिया, एक को सदर बनाया से। असा कमर तो अकाउंट खुलवा के वह दूजे मैडम वो क्षमा आई है भाई तुसा क्या करना चाहो, थोड़ी क्या मनसूबा साजी है, तुसा दसो सारिया मेरे जरिए बैठिया होता कहे कैसे दसी है, कहे कैसे दसी है। मैं मैडम को आकर मेरे को कोई पैसा नहीं जरूरत है, क्यों जो मैं बहुत गरीब हूँ, उस टाइम तो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं कोई पैसे गिनना चाहनी जिस तो कोई कारोबार या कोई गाय भैंस गिन के वो करना चाहनी हूँ। उस मैडम मैं ठीक है आता उस मीटिंग उस आके थोड़े आसो नुमाइंदे सारे NRSP ने मीटिंग करे सुन सारे मेंबरान मिल सो। जब नुमाइंदे आए तो उन्हें मीटिंग की थी, तो मेंबराना को आकर भाई तुसा क्या ऐसी जवानी 600 कलसूम नहीं, उन्हें आके ठीक है छा। लेकिन बात भी उन्हें 100 सवाल की थी, पूछ गुछ की थी भाई एक गरीब जो है तो किशुत की देसी, उन्हें आका अगर ये न देती तो असा दिसा। अता मीटिंग थी के उन्हें साको कर्जा दिता 20,000 रुपया। 20,000 रुपये कोई मेरी भिड़ा बकरियां में वो वेची अंचा वेच के मैं 45,000 तो गां की दी चा गां की दी तो जेले बात तंजीम सारी सारी शुरू थी बती है। क्यों मैं CRP ने तौर पर काम करे नहीं बती हम 2,000 रुपया मैं कुदू भी मिल ना, क्यों किशो तो मैं आसानी नाल जमा करवा देनी हूँ। एक मैं कमेटी भी घटी हुई नाल उस तो मेरे अपना तंजीम सारी शुरू थी है। VO बनी VO ने विच मैं मेंबर बन गई हूँ मैनेजर। बात उस तो बाद सारी आपने जरा 100 को तश्कील ली थी, उसने भी 100 ने विच मेरे को ओहदा मिल गया। तो रिकवरी मेरी मुकम्मल थी गई है माशाल्लाह।
मैं बेटे ही मेरा वदा थी गया है, पढ़ना भी पिया है, मैं उसको रक्षा भी घिन देता है। वो आप स्कूल आना ही तो बच्चे भी चढ़ा के ना आता, वो समझो जे रक्षे थे बच्चे ने ना तो पैसे भी मिल रहा ना, बच्चे को पढ़ाने लग गई तो मेरी आमदनी इजाफा थोड़ लगी उस तो मैं वह रसो कोलो भी करता कि वो करता तो मैंने रुपये लवा अपने रसो कोलो कि 20,000 रुपये सारी बात एक पवर्ती स्कोर कार्ड थे ये बेनजीर सर्वे ले तो मेरा 7 स्कोर है उस टाइम दी आता 7 स्कोर है। मैं आसानी किस्ता देने जब बच्चे रक्षा चलाने लग गए, मैं खुद भी सीआर तौर पर काम करे नहीं पी हूँ, मेरी आमदनी इजाफा थी लग गया माशाल्लाह। मैं मकान भी बना के था कर रही वापस थी गया आता ठीक ठाक समझो। और इदारे उन्होंने भी काम करो लगे, एक इदारे ने प्लेटफॉर्म से आके तो मेरे को ये पोजीशन मिली है यार मुख्तलिफ इदारे आने तो उसने विच मैं काम करे नहीं वती आवाज SP ने विच ब्याह मुख्तलिफ यूनिसेफ ने विच सन 2 महीने पहले वह सर्वा थे NRSP ना जिन्हें विच मेरे सिक्योरिटी कार्ड चेक की तने ता पॉवर्टी कार्ड पहले 7 आई तो वत मेरा 57 निकले माशाल्लाह। वो क्यों 57 निकला है, मैं एक घर भी बना के था, कमरा एक किचन भी बना के था, कूलर भी गिन के था, फ्रिज भी गिन के थी, मोटरसाइकिल भी गिन के था, रक्षा भी आई आता। इस कर्जे नाल मेरे को बहुत सहूलत मिली है तो आसानी किस्तें अदा थी गए जे अज तो मेरे 57 मैं पहुंची खलियां इस मकाम तक खलियां जरा मेरा ओहदा सोने विच फाइनेंस सेक्रेटरी ने तो माशाल्लाह। मैं रसूल साहब खास तौर पर सन 2007 तो सारे गिन के सारे नाल काम करे पैन शेख सुल्तान ने मैं शुक्रिया अदा करनी अज तो को टाइम दिता है लोग मेरे को कहना NRSP नाल इतनी बूढ़ी थी गई क्या करे नहीं वधी जल्द सवाल तो सुल्तान साहब इतनी बूढ़ी थी कि काम करे मैं ना कर सकनी सर तुझा खुद इस गल ना जवाब दे सो तो ऐसा सोचो मैं बिल्कुल ना निकल सा इंशाल्लाह इसको ऐसे मकाम पे पहुंचा करे ऐसा कहना जिते आई तो पहुंचे करे बहुत ऊंचा मकान है इस तो ऐसा कहना सा और भी ऊंचे मकान दे विना थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब को टाइम देता ने। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप लोगों ने जो कुछ किया है उसका शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए बजाय आप मेरा शुक्रिया अदा करें। आपको पता है कि आप लोगों के इस काम से मुझे क्या मिला है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा जो अवार्ड है वो इमरान खान ने मुझे दिया, मालूम है आपको या नहीं? निशान इम्तियाज जिसे कहते हैं। जी सर। और जी वो सर। सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने मियांवाली में देखा कि आप लोगों ने कैसे काम किया है और वो उसका सारा मिलना तो आप लोगों को चाहिए था निशान इम्तियाज, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं तो आप सबका मशकूर हूँ, आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो काम किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इसके बाद रशीदा बीबी हैं, वो थोड़ा अपनी स्टोरी शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीदा बीबी है ते मैं NRSP तो बहुत फायदा उठाया LSO दी तरफों। मेरी तंजीम का नाम है महल्ला उमर खैल F1 दी, मैं सदर हूँ और मेरे को बहुत फायदा था कि मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं उस तो कर्जा किदा है 20,000 रुपया कर्जा किदा है, मैं कोई आमदन दी जरिया को नहीं, मैं मशीन से घिदी है, मशीन है मैं सिलाई करना शुरू कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा थोड़ा जे हालात बेहतर थी लगे, उस तो बाद मेरा स्कोर है 17 सर, लेकिन मेरे हालात होले होले बेहतर थी मैं किस्ता करियां वो अदा की थी रखियां घर का निजाम ही चलाई रखा। मेरा घर वाला बहुत बीमार है, दिल का मरीज है, कोई काम भी नहीं कर सकता सर। मैं दोबारा कर्जा गिदा 120,000 रुपया मैं दोबारा गिदा, मैं भारी मशीन घिदी है चकेरी यानी कि 45,000 दी आती है, तो मैं सेकेंड हैंड मशीन घिदी है 30,000 दी घिदी है। कोई मेरे घर पाया पैसे थे 20,000 रुपये मैं कर्जा घिन के मैं मशीन घिदी है। मेरा काम माशाल्लाह ठीक ठाक चलों लग पे। मैं को मेरे बच्चे भी 3 बच्चे हैं, एक बेटी है 2 बेटे हैं, उन्होंने को स्कूल दे खर्चा सारा कुछ आप खुद हिका कमाउण लिया 6 वाल खाउण ले शोहर है, एक सासे एक बेटे एक बेटी एक मैं खुद हाँ। घर का निजाम बहुत अच्छे तरीके नाल चलों लग गए मेरा और उस तो ठीक ठाक मेरी आमदन बढ़ों लग गई। वाद साहब मैं एक कमरा भी बना छोड़ा है, एक गाय भी घिन छोड़ी है, छोटी मोटी और घर की जो जरूरत है वो भी मैं घिन छोड़ियां, लेकिन मेरा पास वो कह रहा वो स्टोर ऊपर आई वो थी गए पहले 17 ही स्कोर बात थी गए 36 हो गए है
के लिए सर्व किया NRSP तो मेरा बात स्कोर 36 हो गया है NRSP की तरफ और मैं के लिए मेरा काम चल पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000 800 1500 1100 600 इतनी के लिए मैं कमाउं लग गई मैं होरां को भी सिखलाउं लग गई अपने गांव दे विच मैं कहा चलो तो सभी कोई तो आदा भी हालात बेहतर थी वैसन कह रही हूँ घर दे विच बैठियां कुछ कर ना सकदियां उनको मैं बात उनको ट्रेन देने लग गई उनको वो भी माशाल्लाह बात अपने घर बख्तियार कोई ना कोई उन्हों दी भी आमदन शुरू थी गई है तो मैंने NRSP का शुक्रिया अदा करेनिया ते LSO का भी शुक्रिया अदा करेनिया। माशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत आपकी अपनी मेहनत का नतीजा है ये। सर ये एक 2 लोग और हैं जो शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ। लोग तो बहुत ज्यादा थे लेकिन सर आपके टाइम की वजह से जस्ट 4 को मौका दे रहे हैं। ये कौसर बीबी। ये मेरे पास बहुत टाइम है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कौसर बीबी, मैं बुलंद खैल तंजीम की मेंबर भी हूँ, सदर भी हूँ। 2014 साको घर लंगर सर कार्ड में तक मेरे शौहर बेरोजगार था। मैं अम्मी अबू ने घर लेके गई, मेरे शौहर मेरे नाल लग गया। उतो साको पता लगा कि LSO तंजीम जो कर्जा निकलना पे मैं और मेरे शौहर असा वांज बड़े LSO ने वर्कर ना लंबर गिद्दा से उस आका थोड़ा रिकॉर्ड LSO ना जरूरी है डिस्टर और LSO ने जनानियां जेरियां तंजीम में शामिल हैं। सर 15 औरतां मैं इकट्ठियां कीतियां उस तो बाद वर्कर साडा से असा करदा गिदे 50,000 रुपया जेरे मेरे शौहर को घरों भाई कढ़े वो भी हुन उसने नाल कारोबार करे ना पे सर्वे स्टेशन असा बनाई बात 50,000 रुपया उस गिदे बेटे को रश्का घेन के देता है वह इकट्ठे कारोबार करूं लगे वो डेर भी मेरे नाल है शौहर ने और मजदूर भी रखी बेटा सर्वे स्टेशन ना 10,000 किराया भी देने पाया। 2 मकान ही बना गिदे से रश्का भी चलना पे बेटी ने जहेज भी बनाए बेटे ने भी शादी भी कर छोड़िए। असा शुक्रगुजार LSO ने और NRSP ने सब इस नबत पहुंचाया कि असा सारे घर वाले कारोबार भी करने पाया। असा उस 50,000 तो तरक्की की थी साढ़े 50,000 विच 3 होर भी खाने पैन मजदूर सर। स्कोर सर मेरे पहले 15 था हुन स्कोर मेरा 38 है। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक। वालेकुम सर, मेरा नाम समरीन बीबी है, मैं जत्तन वाले गांव की रहने वाली हूँ और मैं NRSP LSO की मेंबर हूँ और LSO की मेंबर हूँ। NRSP की तरफ से मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसमें मैंने इस्त्री बनाना ठीक करना सीखा है, वॉशिंग मशीन बनाना ठीक की है। वो उससे मुझे पता चला है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इनको मैंने बनाना शुरू किया है, उससे मुझे आमदनी हो रही है। आमदनी की वजह से मेरे घर के जो हालात थे पहले ख़राब थे वो अब ठीक हो रहे हैं, उससे मेरे घर में खुशहाली आ गई है और NRSP का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। सर ये लास्ट वाली जो हैं इन्होंने इस्त्रियां वगैरह ठीक करने की ट्रेनिंग ली और वॉशिंग मशीन ठीक करने की। ये वो डिटेल बता रही हैं कि गांव में जो है पहले ख़वातीन को बाजार भेजनी पड़ती थी इस्त्रियां वॉशिंग मशीन ठीक करवाने के लिए। अभी लोग जो है वो इनके पास भी ले आते हैं और सम टाइम ख़वातीन इनको भी इर्द गिर्द वाली बुला लेती हैं। ये थोड़ा डिफरेंट ट्रेड था तो इसलिए ये लास्ट वन जो है वो शेयर कर रही थी समरीन। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सुना। तो शाहिदा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। सर आपका कोई फीडबैक क्वेश्चन तो हम लोग हैं यहाँ पे। ये शाहिदा बीबी क्या करती हैं? जी सर LSO में चेयरपर्सन हूँ और वॉलंटियर काम कर रही हूँ। नहीं वैसे क्या करती हैं जब आप LSO की चेयरपर्सन नहीं है करती थी? सर बैंक में जॉब करती हूँ सर, इस वक्त बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा, किस बैंक में? अस्करी बैंक में जी। नहीं, आपने तो इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन राशिद, I don't think that we can present like this. नहीं ये तो बिल्कुल आप तो मैं वही हैरान हूँ कि हमारी जो ये LSOs की जो प्रेजेंटर्स हैं वो तो मैंने पिछली दफा भी कहा था ऐसे जैसे BBC उर्दू सर्विस की वो होती हैं कोई नुमाइंदे,
اس کانفیڈنس سے اور ماشاءاللہ اتنے جذبے سے آپ نے پیش کیا اور اتنی صفائی سے پیش کیا آپ نے, کوئی لغت کہیں لکنت نہیں, کچھ نہیں. تو بہت مبارک ہو آپ کو سب کو. بہت شکریہ. شاہدہ لیکن آپ تو بینک میں ہے نا, عسکری بینک میں, کہاں کی رہنے والی, کہاں کی ہیں؟ سر میں قمر مشانی کی رہنے والی ہوں اور عسکری بینک میں ابھی مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں, میں کام کر رہی ہوں اور 2009 سے میں LSO کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ. نہیں مجھے تو یہی خطرہ لگا نا کہ بینک والے نے آپ کو ٹرانسفر کر دیا تو پھر کیا ہوگا LSO کا. سر وہ ٹرانسفر نہیں کرتے, میں نے یہ بات ان سے پہلے سے کر رکھی ہے, وہ ٹرانسفر نہیں کریں گے. نہیں میرے خیال سے آپ کے ممبران جو ہیں جنہوں نے آپ کو LSO کا چیئرپرسن انتخاب کیا, میرے خیال سے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بہت سمجھدار ہیں کہ انہوں نے آپ کا سلیکشن کیا. کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تنظیموں کی جو کامیابی ہے وہ جو اس کے ممبران ہیں ان پہ منحصر ہے, اور خاص طور سے کہ وہ ممبران جو ہیں وہ تنظیم کو چلانے کے لیے اپنے جو کارکن انتخاب کرتے ہیں, اصل میں یہ ہوتا ہے. تو پروگرام تو ہر جگہ بڑھا سکتے ہیں آسانی سے, لیکن یہ کہ اگر لوگ نہ ملیں اس کو چلانے والے تو وہ پھر پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے CRPs ہیں, کوئی 10 CRP آپ کے ہیں جو والنٹیئرز ہیں اور 10 ہیں جن کو آپ پے کر رہے ہیں. CRP کوئی ہے یہاں پر آپ کے پاس؟ جی سر, یہ ہمارے پاس موجود ہیں. کلثوم بی بی بھی CRP ہے. آپ بات کریں. تو یہ جو وائس کا آپ نے بتایا تھا, وائس پروگرام کے کوئی CRP ہیں؟ جی جی میں خود کام کر رہی ہوں سر. آپ کر رہی ہیں؟ جی جی. تو وائس میں آپ کو کیا, کس طرح سے آپ نے اس کو کیا, کیسے آپ کو کوئی دقت نظر آئی؟ کچھ لوگ ماننے کو تیار تھے سب کچھ کرنے کے لیے, کیونکہ تو بڑا کام ہے نا. سر میرا نام کلثوم بی بی ہے. میں ایسا علاقہ ہے جتنے اگے لوگوں کو سمجھ آ چکی کیوں جو NRSP اتنے کام کرے نہیں پی آئی, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ساریاں, لیکن جی تھوڑی بہت مشکلات آئی تو سارے پچھو سمجھو اگے آسان ہے تو پچھو عبدالرحمان صاحب ہے, عارف آئی, سارے پچھو مرد حضرات نے بھی ہاتھ آئی. میرا صاحب کو بالکل ڈر خطرہ کونے, بغیر جھجک کے ایسا ان علاقہ میں کام کیتا ہے. عبدالرحمان صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ہیں سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم عبدالرحمان صاحب. میں تو بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایسے مرد کم ہی ہوتے ہیں جو خواتین کو اتنا موقع دیں, تو آپ نے کیسے خواتین کو اتنا موقع دیا؟ سر یہ موقع تو ہم نے اتنا نہیں دیا جتنا نے خود لیا, محسوس کیا ان لوگوں نے, اور خود بھی آگے آئی ہیں. ہم نے تو جسٹ ان کو سپورٹ کیا ہے. تو ہم تو دوسری خواتین کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, لیکن یہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں. اور پہلے میں خود چیئرمین تھا, اب ایک ممبر ہوں, اور یہی خواتین اب چیئر پرسن ہے سر. ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں نا کہ یہ تو بڑی اچھی آپ نے مثال پیدا کی ہے, کیونکہ اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, اگر دونوں ساتھ چلیں تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کی مثال ہے اس LSO کی, وہ تو بڑی اچھی مثال ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مبارک ہو آپ سب کو. میرے خیال سے یہ تو بڑی, راشد آپ کے خیال میں مشکل سے ایسا نظر آتا ہے ہمیں کہیں اور؟ ایک تو سر ان کی یہ جو LSO ہے اس کی جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی خوشائن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیئرمین یونین کونسل یعنی وہ پولیٹیکل سائڈ پہ پارٹیسپیشن بھی انہوں نے کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف NRSP سے بلکہ اس کے بھی آگے لے گئی, یعنی OPP کہاں اور باقی جو ادارے ہیں وہ. اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس یہ بہت اہم ڈیٹا موجود ہے کہ ان کا پاورٹی سکور, وہ جو گریجویشن آف پاورٹی کے سکورز ہیں وہ بھی اب ان کو پتہ ہے.
تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی حالت پہلی اور اب میں کیا فرق آ رہا ہے اور کس طرح یہ ان کے حالات چل رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جو ہمارا NRSP کا جو مقصد تھا وہ اس LSO نے تقریباً پورا کر دکھایا. ظاہر ہے یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، یہ زندگی تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ جو آپ کی جو تربیت تھی اور جو انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے اس کا جو پھل ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے ہمیں بالکل بڑے واضح طور. اور جو آپ کا جو طریقہ کار تھا، یہ شعیب سلطان صاحب نے جو ہمیں طریقہ کار یہ سکھایا تھا، اس کے نتائج ہیں جو آپ لوگ بول رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا، یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. پھر وہ ایسی ہی ایک جیسے عام ایک گاؤں اور عام ایک یونین کونسل وہ ہونی تھی. لیکن ماشاءاللہ آپ تو اب کافی ترقی کر گئے ہیں اور بہت آگے چلے گئے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو LSO، یہ جو وائس کا جو پروگرام آیا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ نے جو اپنی جو معاشی بھی اور پھر معاشرتی جو ترقی کی ہے یہ بہت خوش آئے گا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں جو جب NRSP آنے سے پہلے جو گاؤں میں جو ایک مرلہ زمین کی قیمت تھی وہ اب کم سے کم 5 گنا بڑھ گئی ہوگی، صرف انہی وجوہات سے کہ آپ نے ایسے ترقی کی. 11 گنا بڑھ گیا، 11 گنا 11 گنا بڑھ گئی ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ گاؤں کی ترقی کی وجہ سے کیسے حالات اور زندگیوں میں جو بدلا ہے. تو میرے تو حساب سے سوائے اس کے کہ میں آپ سب کو مبارک دوں اور ہمیں یہ موقع ملا کہ باقی بھی جو سارے ہمارے ساتھی ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں کہ کیسے چند خواتین اور حضرات نے مل کے پورے اس علاقے کو بدل دیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شعیب سلطان تھے اور انہوں نے پورے پاکستان میں اور اس سے پہلے جنوبی ایشیا میں، ہندوستان میں، ہر علاقوں میں انہوں نے بدلا ہے لوگوں کو حالت. وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ کار ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ طریقہ کار جس نے اس طریقے پہ عمل کیا ہے وہ سرخرو ہے اور وہ کامیاب ہے. تو اس میں تو ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے شعیب صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمیں طریقہ سمجھایا، اور اصل بات یہ ہے کہ اس پہ ڈٹے رہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کو بدلے نہیں. اس سے کوئی جو وہ بات آج سے 10 سال پہلے کہتے تھے آج بھی منوان وہی بات کہتے ہیں. یہ غلطی شاید ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان بات ہے اور اتنی سیدھی بات ہے کہ اس کے اندر شاید ہم کو اپنی اختراع نکالتے ہیں، جس کو اگر وہ اختراع نہ نکالیں اور سیدھا سیدھا ان کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا ماشاءاللہ جو آپ لوگوں نے آج ہمیں بتایا. تو میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے اور ہماری ٹیم NRSP کی پوری ٹیم کو سرخرو کیا. تو شکریہ شعیب صاحب، آپ بتائیے. راشد زیادہ شکریہ سب آپ لوگوں کا ہے. اتنا مبالغہ جو کر رہے ہو میری اتنی تعریف کرنے کا، حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یعنی ٹھیک ہے میں نے تو وہ استاد اپنے جو تھے میرے رمیز خان ان سے اصول سیکھے، لیکن اصولوں کو اوپر عمل کرنا تو اس میں تم لوگوں کا اتنا بڑا ہاتھ ہے، اور سب سے بڑا ہاتھ لوگوں کا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. تو مجھے تو وہ یاد آتا ہے، پتہ نہیں یہاں لوگوں کو پتہ ہے اس کا یا نہیں کہ ہم میاں والی آئے کیسے تھے. کہ 2004 میں عمران خان و نفس نفیس خود مجھے ملنے آئے میرے گھر پہ، کیونکہ ایک RSP میں آیا کرتے تھے گلگت، تو مجھے جانتے تھے، تو وہاں دیکھا تھا انہوں نے کہ ایک RSP کیا کام کر رہا ہے. تو اس زمانے میں وہ ملا کرتے تھے ان کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ، وہ فنڈ لے کے آئے میرے پاس کہ آپ بتائیں کہ یہاں میں میاں والی میں کیا کروں. تو پہلے تو مجھے ان کا مشکور ہونا چاہیے، ورنہ میرے خیال سے میاں والی میں ہم آتے نہیں اس وقت. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا جو مجھے
مشکور ہونا چاہیے وہ آپ لوگوں کا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے راشد سے کہا کہ بھائی یہ پروگرام یہاں پر NRSP نہیں تھا، لیکن میں ان سے کہا کہ اس کو یہاں شروع کریں ایک یونین کاؤنسل لے کر کے، اور اس کے بعد NRSP نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس تندہی سے، جیسے راشد کہہ رہے ہیں، اور جس صورت سے راشد تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک NRSP جو چاہتا تھا تقریباً وہ سب کچھ کر لیا. میں کہتا ہوں تقریباً نہیں، بہت زیادہ کر لیا. آپ نے تو جو کچھ ہمیں امید بھی نہیں تھی وہ سب کچھ بھی کر لیا آپ نے. اور جیسے راشد کہہ رہے ہیں کہ میرا تو ایک پورا تو کہتے ہیں اعتماد اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت پیدا کی ہے. غریب سے غریب ترین خاتون ہو، مرد ہو، سب میں صلاحیت ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، اور وہ جو ان کو دقت ہے اس میں تھوڑی سی ان کی مدد کی جائے تو آپ. اب یہاں میں راشد دیکھ رہا تھا کہ تم نے 26 لاکھ دیے تھے ان کو CIF کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ، اور انہوں نے 4.5 کروڑ اس کو ریوالو کر کے کر لیا. جی ہاں، ایسے ہی. نہیں کمال ہے نہیں ہے، بہت کمال. یہ شاید بینکر جو ہیں یہ شاید یہ آپ نے کوئی نسخہ نکالا جو پیسے ملٹیپلائی ہوتا گیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کس طرح سے 26 لاکھ کو 4 کروڑ میں انوالو کر دیا، اور اب اس وقت تو ایکویٹی بھی کافی زیادہ ہوگی ان کی، 26 لاکھ کی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوگی. نہیں یہ تو کمال کا کام ہے کیا ہے. میرے خیال سے جو ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ کچھ کہنا چاہیں، کچھ ان سے بھی بات کر لیں. عبدالرحمان یا اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی اس حوالے سے آپ کی ٹیم کی پوری معاونت ہمارے ساتھ تھی. آپ جیسے استاد اور آپ کی ٹیم جیسے استاد ہوں تو سر محنت پھر رنگ لاتی ہے، اور یوں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ باقی رہی CIF کی بات، تو ان میں سر 3-4 خواتین نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری جو بیان کی ہے. اب سب کو تو ہم ساتھ نہیں لا سکتے تھے، اگر ایک بندہ وزٹ کر کے سروے کر لے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے خواتین نے قرض لیا اور کہاں پہ خرچ کیا اور ان کی یہ پوزیشن کیسے بنی. اب تو پہلے تو یہ کنسیپٹ بھی ہمارے خاص طور پر میاں والے میں نہیں تھا کہ خواتین بھی کاروبار کریں. جس طرح یہ خواتین اب سامنے آئی ہیں، پہلے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی کدھر اجازت تھی، کام کرنے کی کدھر اجازت تھی. اب یہ وہی خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کاروبار بھی کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ ممکن بھی نہ تھا، بلکہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور خاص طور پر وہی خواتین اپنے خواتین کے خاص طور پر فیصلے بھی کر رہی ہیں. اور سر اس سے زیادہ جو فیصلہ جات کی ہیں تھانہ کچہری سے، اب تھانہ کچہریوں میں عدالتوں میں فیصلے تو ہو جاتے ہیں، لیکن خاندانوں میں دشمنیاں تو ختم نہیں ہوتی. یہ جب صلح جوئی ہوتی ہے، پنچایت ہوتی ہے، مصالحت ہوتی ہے، تو ان پہ یہ دشمنیاں ختم ہو جاتے ہیں جو سالہ سال سے چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ کی اور آپ کی ٹیم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان صاحب. اور کوئی کچھ کہنا چاہیں، کچھ خواتین میں سے یا مردوں میں سے؟ کیوں راشد کافی وقت لے لیا ہم نے ان کا؟ ہمارے پاس تو وقت ہے. جی بتائیں. سر میں کچھ گل کرنا چاہتی شیخ سلطان صاحب نال. جی کرو بسم آمنے اللہ. سامنے تھی گل تھی نہیں پئی ہے. جی سن رہا ہوں میں. جرا اے ادارہ ہے نا NRSP، میں یہ سمجھنی اے ادارہ NRSP ساری ماں ہے، اساں اس نے بیٹیاں.
इदारे तो बहु आने जरा असां काम भी करनिया वतियां ते कर भी चुकियां ओ आके ते वल वेने ते जेरी एनआरएसपी है ना समझो 7 महीने एक दफा 2 दफा तो लाजमी चक्कर लेनी है जरा हुन भी प्रोजेक्ट सारा चला कल वैस ने जो खुद मैं सीआरपी तौर काम करे नहीं पईया बहु अच्छा प्रोग्राम है अरे खवातीन को आगाही सेशन देने ता समझो सारे इलाके में खवातीन हाँ तो सही लेकिन उनको ये पता कौन है लेटरीन इस्तेमाल करेंगे भैया किस किस्म नाल ओ करा अस उनको तरबियत दी है सेशन देते हैं भाई साबुन इस्तेमाल करो साबुन नाल धोवो बच्चों को अगर तुसा कोशिश देनी है दूध शो या फिल्टर साबुन नाल धोवो ता मास्क स्मूथ इस्तेमाल करो ता अज भी सारा सेशन के बहुत सारी उन्होंने तब्दीली आ गई है यारे बच्चे मिसाल तौर वले नाल मामा खेने वनो निकल वनो बिना बकरे खेने वनो चराऊं लेकिन असा उनको नाप के समझने दे अगर थोड़े बच्चे पढ़े लिखे हो सुन ता ऊंचे मकान पे पहुंच अगर ये बिना बकरे चले हो सारी जिंदगी ना बिना बकरे सार चरावणिया खुद मैं थोड़ी पढ़ी मेरे को सारी की तालीम कोनी ता मेरा तजर्बा ज्यादा थी गया एनएसपी नाल चल के खुद मैं आवाज काम कीता है जर सनती कार्ड असा बनाए प्लेटफार्म जा ता 9000 सनती कार्ड असा बनाए जरे मेरे इतने मैं हम जहाज में टिकट मेरे को मिलाई हाँ बस साल में जहाज देखनी होनी है ठीक है खाबा ने जहाज देखनी हो जरे खाब चढ़ के मैं कराची समझो जहाज चढ़ के कराची गई हाँ वह जहाज आई भी हाँ ते मैं शुक्रिया अदा एनआरएसपी थे अपने रसोना करे जरे इस मकाम के प्लेटफार्म से मेरे को पहुंचाया नहीं ते बेको दे के और खवातीन भी खुद मिन्नता करे असावी से रसोने विच नुमाइंदा बनिया मेंबर बनिया काम करना चाहनिया लोकन विच इतनी आगाही आ गई है खवातीन ने भी खास कर सा बहुत खूब गुलाम रसूल ये तो बताएं आपके जो वो इतना जिक्र कर रही हैं एनआरएसपी के लोगों की तो कौन कौन थे आपके एसओ यहाँ पर और बाकी और भी तो अलमजा का नाम इतना मुश्किल है उसको अलमाजिया सर है अलमाजिया सर है अलमाजिया खान अलमाजिया तो कौन कौन थे जिन्होंने ये काम किया इतने दिनों से सर इधर जो मतलब मुख्तलिफ अदवार में चूंकि जो मतलब टाइम काफी 10-12 साल जो मतलब गुजर गए हैं उस वक्त ये है कि हमारा रीजनल ऑफिस भी मियाँ वाली में था मैं खुद भी उधर ही था मियाँ वाली मेरे लिए भी एक जो मतलब टेस्ट केस था जब मैं इनके पास चला गया जब कुछ लोगों को जब मैंने खवातीन के बारे में जो जिक्र की तो कुछ लोगों ने कहा अगर खवातीन की बात करनी है आप चले जाओ हमारे नजदीक मत आ जाओ कई लोगों ने जो छोड़ के चले गए लेकिन यह है कि भाई बाद में आके जो तंजीमों में शामिल हो गए जब उनको सारे चीजों का जो मतलब पता चल गया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं इनका पर्पस क्या है जो मतलब वो जब सारे चीजें जो मतलब वो उन्होंने देखा तो जो मतलब वो लोग खुद फिर वापस बाद में आ गए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है इधर खवातीन को शामिल करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट हमें मिला था उसमें भी जो मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सबसे जो मतलब मुश्किल यूनियन काउंसिल जो मतलब वो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे जो मतलब लोग खवातीन को जो मतलब वो नहीं देते हो परमिशन ना देते हो और मुश्किल है जो जिनके साथ काम करना हो फिर ये है कि भाई यहाँ पे अब्दुर्रहमान जो मतलब उस वक्त से जो मतलब वो आप इराक का जो मतलब वो इस्तेमाल कर लेते हो वो वाकई में ये लोग जो मतलब ऐसा ही है जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है मैंने कहा नहीं खवातीन जो मतलब इस तरह बहुत सारे एरियाज में काम कर लेते हैं इन्होंने कहा कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि भाई हम उनको जो मतलब आके लेके आ जाए फिर मैंने जब इनका थोड़ा सा जो अंदर से स्टडी कर ली तो पता चल गया कि भाई जो गरीब लोग हैं वो अमीरों से डरते हैं कि भाई हम निकलेंगे तो पता नहीं वो हमें क्या कहेंगे अमीर लोग जो मतलब वो गरीबों से आम पब्लिक से डरते हैं कि भाई अगर हमने अपने खवातीन निकाल दी तो जो मतलब लोग हमें क्या कहेंगे फिर मैंने अब्दुर्रहमान इधर आरिफ भी बैठा हुआ है और जो मतलब ये मैडमें भी बैठी हुई है मैंने इनको कहा आप लोग ऐसा कर ले कि भाई आप फैमिली टूर पे चले जाए कश्मीर में फिर ये है कि भाई इन्हीं लोगों ने जो मतलब अपने घर वालों को अब्दुर्रहमान ने अपने मिसेज साथ लेके गया जो मतलब आरिफ ने और ये है कि भाई ये बीबियां इधर जितने बैठे हुए हैं इन्होंने जो मतलब अपने हस्बैंड्स को साथ लेके जो मतलब कश्मीर गए वहां पे यह है कि वहाँ तंजीमों में इन्होंने मीटिंग की बहुत सारे चीजें
آج تو جو مطلب پھر بھی ٹھیک ہے، جو مطلب پہلے وہ شٹل کاک میں ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مرد ہے یا جو مطلب عورت ہے۔ جب یہ لوگ کشمیر میں گئے تو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے جو مطلب وہ اپنا شٹل کاک وغیرہ جو مطلب وہ اتار دی، انہوں نے کہا ادھر تو ہم اس انوائرمنٹ میں نہیں جا سکتے۔ وہ ایک جو مطلب بریک تھرو تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تو کچھ دنوں کے بعد بہت سارے جو مطلب لوگ ہمارے پاس آئے کہ بھئی ہمیں بھی جو مطلب ٹور پہ بھیج دیں، ہمیں بھی ٹور پہ بھیج دیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر لوکل جو مطلب مختلف ایلسوز میں جو مطلب مختلف ایلسو کے لوگوں کو جو مطلب بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے جو مطلب خواتین باہر آ گئے، ان کو الاؤ کر دیا تاکہ یہ کام کر لیں۔ یہ کلثوم کی ایک اور بڑے مزے کی جو مطلب کہانی ہے سر، جب اس کو کام اس کے میاں نے کرنے نہیں دیا، اس نے زہر بھی کھایا تھا۔ زہر کھایا تو یہ ہے کہ بھئی پھر انہوں نے ایل ایس او کو جو مطلب فون کیا، ایل ایس او والوں نے جا کے جو مطلب اس کو ہاسپٹل لے کے گئی، جو مطلب وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی انہوں نے اس کو الاؤ کر دی کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جو مطلب آپ جا کے آپ کام کر سکتے ہو۔ اب یہ ہے کہ بھئی یہ کلثوم ہے تو جو مطلب ان پڑھ، اب ہمارے تنظیموں کے ساتھ وہاں پہ جتنے بھی جو مطلب ادارے ہیں وہ انہی کے ساتھ جو مطلب مل کے کوئی کام ہو تو جو مطلب ان کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ بھئی میاں والی میں ایک ٹائم جو مطلب ہمارے لیے تھوڑا سا مشکلات پیدا ہوئے، بہت سارے ایل ایس اوز آرگنائز ہو کے جو مطلب وہ آئی چیکنگ والا معاملہ ہوا۔ کچھ ایل ایس اوز کو ہم نے صرف بھی دیے تھے، انہوں نے وہ کھا پی لیا، جو مطلب وہ واپس نہیں کیے۔ اس کی توڑ کے لیے بھی جو مطلب پھر اسی ایل ایس او نے جو مطلب بہت کام کر دے۔ اس کے بعد جو مطلب پھر کافی چیزیں جو مطلب وہ ہو گئے۔ تو ادھر اس قسم کے جو مطلب وہ چیلنجز تھے سر، لیکن یہ ہے کہ انہی لوگوں کی مدد سے وہ سارا چیزیں جو مطلب حل ہو گئے آج آپ کے سامنے۔ کتنے ایل ایس اوز ہیں آپ کی میاں والی میں؟ میاں والی میں ہمارے پاس ہے سر جو مطلب 20 ایل ایس او 20 ایل ایس او ہیں جی سر۔ اور قمر مشانی کی طرح کتنے ایل ایس اوز ہوں گے؟ قمر مشانی عیسیٰ خیل کی جو ایل ایس او ہے سر، جو مطلب ان میں زیادہ تر جو مطلب یہ قمر مشانی کے ایل ایس اوز جو مطلب اور ایل ایس اوز میں بھی جو مطلب تھوڑا سا انٹروین کر کے جو مطلب ان کو لے کے جو مطلب آ رہے ہیں۔ اس طرح کے جو مطلب ایل ایس اوز ہے سر جو مطلب 6-7 اور۔ اچھا، کب سب کے سب کیسے کب ہوں گے ایسے؟ جی سر، میں نے کہا جتنے ہیں 20 کے 20 جو ہیں وہ کیسے بنیں گے ایسے؟ سر جو مطلب ظاہر بات ہے جو مطلب یہ ایک جو مطلب پروسیس کا نام ہے۔ یہ جو وائز کا پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ واقعی میں جو مطلب بہت وائز سیجن ہے۔ چونکہ جو مطلب ہمارے پاس جب کچھ ہو تو جو مطلب لوگ جو مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں نا، جب کچھ نہیں ہوتے ہیں تو جو مطلب لوگ دکھتے ہیں ہم خالی بیٹھ کے کیا کریں گے۔ وائز کی وجہ سے یہ ہے کہ بھئی یہ دوبارہ جو مطلب ایک مہم شروع ہوئی ہے، اس کو جو مطلب فردر بھی بڑھا دے سر تو جو مطلب میرے خیال میں بہت سارے جو مطلب ایل ایس اوز اسی کیٹیگری پہ جو مطلب آ جائیں۔ دیکھیے غلام رسول، آپ جو جیسے یہ ہیں شاہدہ ہیں یا آپ کے سی آر پیز ہیں، ان کو کتنا آپ استعمال کرتے ہیں اور جگہ لے جاتے ہیں ان کو؟ کیونکہ جی سر، جو مطلب یہ شاہدہ جو مطلب کلثوم شمیم، اچھا جو مطلب یہ اور ایل ایس اوز میں بھی فور ایگزامپل ہم لوگ وہاں پہ نہیں بھی جاتے تو جو مطلب وہ مقامی لوگ ابھی انہی کے پاس آتے جو مطلب ان سے مشورہ لے لیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، یہ پھر ان کو گائیڈ کر لیتے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلام رسول، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ ٹرینر بنائیں جی سر، ان کو، اور آپ ان سے گزارش کریں کہ یہ جائیں ان ایل ایس اوز کو اور ان کو سمجھائیں۔ سر یہی کہہ رہا ہے وہ کہ یہ جو ہیں یہی جا رہی ہیں اور وہاں سے انفیکٹ ایل ایس اوز بھی ان کے پاس آ رہے ہیں، تو یہ اب ایک ٹرینرز ہی بنی ہوئی ہیں ساری ٹرینر سے سر جو مطلب یہ بھی جا رہے ہیں، لوگ بھی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے نا، کہ اسی طریقے سے جب وہ ان کی اپنی باتیں سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ کام ہو سکتا ہے۔ جی سر، جو مطلب ہے سر۔ اینی وے تمام تمہارا اسٹاف جس نے اتنی محنت کی اور لوگ آئے شوز، اور ہمارے اس میں سر مدثر خان بیٹھا ہوا ہے جو مطلب یہ آر پی ایم ہے، اچھا عبد الباقی صاحب جو مطلب وہ ڈی پی او ہے،
इसी तरह ये है कि भाई मैडम अलमाजिया खान है, इसके साथ जो मतलब हमारा यहाँ पे ताजिमुल्लाह है, वो भी इस मीटिंग में शामिल है। पहले एसपीओ एमईआर था, इसका भी जो मतलब इस एलएसओ में जो मतलब बहुत बड़ा जो मतलब रोल है। इनके रिकॉर्ड कीपिंग की अच्छा जो मतलब वो सारी चीजें इनकी सबकी जो मतलब कंट्रीब्यूशन है सर। राशिद तो बड़ा जबरदस्त काम किया है सारी टीम ने। जी जी, बहुत बहुत मुबारक गुलाम रसूल और पूरी टीम को सर, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर शोएब साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि बात बहुत आगे तक आ गई है। एनएलएसपी की टीम की बात हम लोग कर रहे थे। मैडम अलमाजिया, गुलाम रसूल साहब माशाल्लाह ग्रेट पीपल हैं। तो जब हमने जेंडर्स की तरबियत हासिल की तो जेंडर जीएम सलमा खालिद जब हमारे पास आई तो ये सारी टीम की मुआवना से हम इस वक्त जेंडर की पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पूरी टीम अलमाजिया, गुलाम रसूल साहब और मैडम सलमा खालिद, खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगी उनका, जिन्होंने हम सबको ट्रेंड किया और जेंडर्स की तरबियत लेने के बाद अभी हम जहाँ पे इस पोजीशन में हैं और घरों से भी हमें वो परमिशन है कि हम जहाँ बैठ के सबके साथ बात भी कर सकते हैं। और शोएब साहब और राशिद साहब को मैं दावत देती हूँ कि हम लोग चूंकि बड़े छोटे पैमाने पे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के बराबर तो हम कभी आ भी नहीं सकते। आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन हमारी एलएसओ का विजिट करके हमें भी सीखने का मौका दें ताकि मजीद हम अपने काम को बेहतर कर सकें। शुक्रिया। शाहिदा, ये तुम कोविड को खत्म करो तो फिर आए। तो कोविड तुमने, अरे कोरोना को जो तुमने फैलाया हुआ है, तो यहाँ इसीलिए तो यहाँ ऑनलाइन तुम उससे बातें कर रहे हैं। जब ये सर कोविड, अगर हम ये देखते रहे कि कोविड खत्म होगा तो हम काम करेंगे, तो तब तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम तरक्की कर पाएंगे। और हमारे इलाके में वैसे भी माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग फासले पे बैठ जाएंगे। सर हम लोग, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से थोड़ी रुकते। मैं तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप रिलैक्स होके आए हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा और हमें सीखने का मौका भी दे और हम लोग फासले पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होता। शुक्रिया, कोशिश करेंगे। और राशिद, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच सर। अगर आपका कोई अभी मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, उस पे मतलब हमारा भी मोरल अप हो गया, हमारी एलएसओ की जो मेहनत थी वो आप लोगों को पसंद आ गई है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई सजेशन आप समझते हो कि इसमें है, तो आप प्लीज, आप हैं बाजवा साहब हैं, जवाद साहब हैं, अगर कोई सजेशन देना चाहें, मलिक फतेह खान है, तो हमें जरूर सजेस्ट करें अगर कुछ कहीं पे हम लैक कर रहे हैं तो। नहीं, कहीं लैब्स नहीं कर रहे हो, सजेशन तो कुछ नहीं है। बस वही जो राशिद कह रहे थे ना, कि आप यही सोच लें कि ये तमाम चीजें जो हुई वो कैसे मुमकिन है। अगर आप तंजीम ना बनाती, हो सकता था कुछ। तंजीम में अगर आपके ऐसे एक्टिविस्ट ना होते, कारकुन ना होते, तो कुछ होता। और जो मर्द हजरात ने आपका साथ दिया, तो यही चीजें हैं, इनको कायम दायम रखें तो फिर इंशाल्लाह आप जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। और तो कोई ऐसी बड़ी कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मुश्किल है भी, मतलब ये कि चीज तो बहुत आसान है अगर करना चाहें तो। बस अपनी तंजीम को मजबूत रखें। और यही कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ख़ास तौर से एलएसओस को जो मेरा पैगाम होता है वो यही होता है कि देखिए, आपने और बाकी तमाम जो तंजीमें बनती हैं सोशल वेलफेयर की और इसकी और बहुत सारी तंजीमें लोग बनाते हैं, उनमें और आप में फ़र्क क्या है? आप जो हैं, एलएसओ जो है उसकी जड़ जो है वो घर घर तक है। आपने खुद देखा कि आप कितनी बड़ी परसेंटेज लोगों को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? मेरे ख्याल उनकी कनेक्टिविटी का इशू आ गया सर, हमें तो आ रही है बिल्कुल ठीक है। Can you hear me now?
अभी सुन रहे हैं आप? अलमाजिया आप सुन रही हैं? उनका इंटरनेट में सर आपकी आवाज आ रही है, बाजवा साहब की आ रही है आवाज, लेकिन शोएब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आप आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। जी सर अभी आई है। आ रही है सर, आ रही है। नहीं, मैं यही कह रहा था, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आप में, एलएसओ में और बाकी जो और तंजीमें बनाते हैं लोग, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि आपकी जड़ें जो हैं वो घर घर तक है। मतलब जो सीईओ है वो आपकी बुनियाद है। तो एलएसओ को हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सीईओ जो है वो मजबूत रहे, क्योंकि वो आपकी बुनियाद है। अगर वो कमजोर हो गई, जैसे हमेशा होता है, कमेटी बन जाती है, कुछ बन जाता है, लोग समझते हैं कि नहीं हम फैसले सब कर लेंगे, उनको पूछने की क्या जरूरत है। तो सीईओ और वीओ की इसी तरह जो है वो उसकी एक तंजीम है। जो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि इमारत अगर देखें तो उसमें बुनियाद पड़ती है, उसके बाद दीवारें होती है और उसके ऊपर छत डाली जाती है। तो तंजीमें जो है वो तो बुनियाद है, और आपके विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छत, वो दीवार है, और आप है छत। तो अगर आपने वीओ और सीईओ को इग्नोर किया और उनको बगैर शामिल किए हुए अगर फैसले लिए, और आपने देख लिया कि अगर आप वो ना करती तो इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे बनता, तो छत तो कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल सर। वो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है कि आपने सीईओस को भी शामिल किया हुआ है, वीओस को भी शामिल किया हुआ है, और खुद तो आप कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये आपने इस पे कायम रहे तो और आप किसी चीज की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। ओके राशिद, शुक्रिया अदा किया जाए सबका। जी जी बिल्कुल शुक्रिया अदा किया जाए, सबका शुक्रिया, और जो पार्टिसिपेंट्स है उसका भी, उनका भी सबका शुक्रिया। सो वी हैव 31 पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और शोएब साहब आपका भी शुक्रिया। ये सिलसिला हम इसको चलाते रहेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हम जाएंगे और कोशिश करेंगे आगे से कि आरजीएम साहिबान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके अंदर अगर एलएसओज, चाहे वो नहीं है मसलन आपके इलाके में कोई एलएसओज, वो भी अगर शरीक होना चाहें तो उसका इंतज़ाम करें आप, ताकि ये एक बड़ा एक रेयर ओकेजन है कि जिसमें अब क्रॉस लर्निंग हो रही है। तो कम से कम बाकी जो एलएसओज के जो लोग हैं, जो हजरात हैं, वो दूसरे एलएसओज को सुन सकें, उनकी कारकर्दगी को। तो अब ये वो जो एक ज़माने में जो आरएसपीएन मीटिंग करता था वो पूरी की पूरी वो तो अब नहीं हो रही कि सारे पाकिस्तान से वो भी चीदा एलएसओ आती थी, लेकिन ये एक मौका है। तो अपने डीपीओस को और मैसेज दें ये कि जो एलएसओ चाहें और उनके पास वक्त हो तो वो ये जो हमारी ये जो सिलसिला है इसमें वो शामिल हो सकते हैं अपने दफातर से। तो गुलाम रसूल ये आप देखें, और बाकी भी आरजीएम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें। तो इंशाल्लाह अगली दफा जो हमारी पार्टिसिपेशन होगी उसके अंदर बाकी एलएसओ के लोगों को भी शामिल करें। नहीं, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सबका। क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी क्या? सर शुक्रिया अदा करें आप तमाम लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपका भी और तमाम लोगों का सर, और एलएसओ का स्पेशली। शुरू से शुक्रिया अदा कर रही हो, और कितना शुक्रिया अदा कर, शुरू से आखिर तक शुक्रिया। शुरू से आखिर तो असल में तो शुक्रिया के मुस्तहक तुम सब लोग हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ओके राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड और सबको मुबारक हो गुलाम रसूल, आपको और आपकी सारी को, और जाहिर है एलएसओ को और एलएसओ के सारे जो अहदेदार हैं सबको माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। मुबारक जी, कमर निशानी वाले को बड़ी अच्छी खैर मुबारक सर। खैर मुबारक सर।
Thank you, sir. Thank you. بہت بہت شکریہ. And stay safe. Thank you.